Good morning, everyone. In previous session, we had started our discussion for CPU scheduling. CPU scheduling हमने start किया था, under which we have discussed about what actually CPU scheduling is, what is scheduler, what kind of schedulers we have. We have basically three types of schedulers: long-term scheduler, medium-term scheduler, and short-term scheduler. And then we have discussed how they work, about what kind of queues they are looked, and basically what their functions are. So we have all that discussion. Then we had discussed the various uh, differences between all the three schedulers. So today in this session we'll be discussing about scheduling algorithms. So basically what actually a scheduling algorithm is, which decides, which takes decision about processing of programs, about allotment of CPUs, किस पर्टिकुलर टास्क को कब सीपीयू प्रोवाइड करना है, कितनी देर के लिए करना है, किन को इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है. सो ऑल दैट डिस्कशंस, ऑल दैट डिसीजंस आर टेकन बाय द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. And the scheduling algorithms are of two types. One is preemptive, the other one is non-preemptive. So what actually a preemptive scheduling is? Preemptive scheduling is basically if CPU has been allotted to like certain process, it can be snatched from this process anytime, either due to time constraints or due to priority reasons, whatsoever the reason is. तो प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे सपोज कोई टास्क आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, ऑलरेडी उसके पास सीपीयू है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, कोई दूसरी टास्क आ गई, मे बी कोई हाई प्रायोरिटी टास्क है, अर्जेंट बेसिस पे करनी है, या जो पहले प्रोसेसिंग हो रही है जिस टास्क की, उसका टाइम जो है वो खत्म हो गया है सीपीयू रखने का. तो इन दोनों सिनेरियोज में अगर प्रोसेसिंग चल भी रही है, अगर टास्क के पास सीपीयू ऑलरेडी असाइंड है, तब भी हम उसको डीशेड्यूल करेंगे, उसको वापस ले लेंगे और किसी और टास्क को, किसी और प्रोसेस को सीपीयू अलॉट कर देंगे. सो दिस इज व्हाट प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज अबाउट. So primitive scheduling is costly as compared to non-primitive scheduling. For time constraints, time supports are needed. Also, when all processes share some data, and uh, let's say second process might access the inconsistent data left in between the first processes. So for coordinating also, access to shared data, special mechanisms must be provided. प्रिमिटिव में यूजुअली क्या ड्रॉबैक होता है कि जैसे एक प्रोसेस की प्रोसेसिंग चल रही थी, उसको प्रोसेसर ले लिया गया है, अब उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो तो हॉल्ट हो गई. जिस स्टेटमेंट पे, जिस स्टेटमेंट तक प्रोसेस हुआ है वहीं पे ही हॉल्ट हो जाएगा. अब दूसरे किसी को प्रोसेसर दे दिया गया है, उसकी प्रोसेसिंग होगी, देयर इज नो श्योरिटी कि वो कंप्लीट प्रोसेसिंग होगी या वो भी इन बिटवीन रह जाएगी. तो जब भी उसके पास वापस पहले वाली टास्क के पास वापस सीपीयू आएगा, तो वो एग्जीक्यूशन उसी स्टेटमेंट से शुरू करेगा, वही सिचुएशन से शुरू करेगा जहां वो हॉल्ट हुई थी. सो ये चीज का भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उसके लिए भी एक अलग से मैकेनिज्म चाहिए होता है. So this is why primitive scheduling is quite costly. When we are talking about non-primitive scheduling is what? जिसमें सीपीयू अगर एक टास्क को असाइन हो गया है, वो उसी के पास ही रहेगा जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती. जब तक उस पर्टिकुलर प्रोसेस की, उस टास्क की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, वो अपना काम पूरा नहीं कर लेती, तब तक उससे सीपीयू या कोई भी एलोकेटेड रिसोर्स वापस नहीं लिया जाएगा, और बाकी टास्क जो होंगे उतनी देर तक वेट करेंगे वेटिंग क्यू में. So this is about non-preemptive scheduling. So once the CPU has been allotted to a process, the process keeps the CPU until its termination or its
transition to be blocked state. So this means that once CPU is allocated to a process, this process can use the CPU for its own execution till it willingly surrenders or leaves the CPU. अगर process छोड़ना चाहे CPU को तो छोड़ सकता है, otherwise कोई भी scheduler, कोई भी interruption उससे वो CPU ले बीच में ले नहीं सकती है. So this is about non-preemptive scheduling algorithms. So there are certain differences between preemptive and non-preemptive. So let's see to it. Firstly, we are having preemptive scheduling. Under this, a scheduling discipline is preemptive if the CPU can be taken away from a process after being allocated. But when we are talking about non-preemptive, a scheduling discipline is non-preemptive if once a process has been given the CPU cannot be taken away from that process. Yeah. So next we are having, even if CPU have been allotted to a certain process, it can be snatched from this process anytime, either due to constraint or due to priority reasons. But in case of non-preemptive, we can say in non-preemptive scheduling, once the CPU had been allocated to a process, the process keeps the CPU until it releases the CPU, either by terminating or by switching to the waiting state. So till then, the CPU will stay with that particular process only. Then in preemptive scheduling, it is costly as compared to non-preemptive scheduling. The context switching from invocation overhead is preemptive scheduling. So it makes it quite costly because there are a certain kind of mechanism we have to embed for context switching as well, which requires really a huge amount of overheads. Then in case of non-preemptive scheduling is not costly as compared to preemptive scheduling because there is no context switching and overheads involved. In case of preemptive systems, higher priority jobs are processed before the lower priority jobs. So whosoever job it comes with high priority, it dealt first, then the lower priority. But in case of non-preemptive, shorter jobs made to wait for longer jobs. So here they are mostly works on first come first serve basis. So there may be a possibility that shorter jobs are waiting and we are prioritizing the longer jobs here. So this is all about preemptive and non-preemptive scheduling and the various differences between both. Apart from this, we are having dispatcher. So what actually a dispatcher is? This is another component involved in CPU scheduling. Like scheduler, we have a dispatcher as well. So it is a program responsible for assigning CPU to a process. जो जब भी हमने शेड्यूलर्स डिस्कस किए हैं, स्पेशली द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी क्यू में ऑर्गेनाइज करता है जॉब्स को और उनको शेड्यूल करवाता है सीपीयू को. So it is actually organizing the whole queue of jobs. But कौन सी जॉब को जब भी रेडी क्यू से एक जॉब लेके सीपीयू को देनी है, so that particular task is done by the dispatcher. So it is actually assigning the CPU to the processor. Assigning the CPU to ready processor involves three major steps. The one is context switching. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है कि जब हम स्विच करते रहते हैं मल्टीपल जॉब्स के बीच में, कि थोड़ी देर एक जॉब को हमने सीपीयू दे दिया, फिर दूसरी को देना है, फिर तीसरी को देना है. लेट्स से एक एक सेकंड के लिए सबको हम प्रोसेस कर रहे हैं.
तो हम कॉन्टैक्ट स्विचिंग कर रहे हैं उनकी, ठीक है। यहाँ कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ गई, ऑलरेडी मेरे पास एक टास्क चल रही है, तो हाई प्रायोरिटी वाले में मैं स्विच करवाऊंगी। जब उसका काम हो जाएगा दोबारा से फिर स्विचिंग होगी सीपीयू की टू द ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इस तरह से सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट स्विचिंग के लिए ध्यान देना पड़ता है। इसमें डिस्पैचर वर्क्स विद कॉन्टैक्ट स्विचिंग, and as it implies to switching the CPU from one process to another, this involves saving the state of the old process and loading the saved state. So context switching में क्या होता है कि हमें जो प्रोसेस जो है जिससे हम सीपीयू ले रहे हैं उसकी स्टेट भी सेव करवानी पड़ती है, और जो टास्क जिसके पास सीपीयू गया है उसकी स्टेट जो है रीलोड करवानी पड़ती है, क्योंकि टास्क वहीं से ही एग्जीक्यूट दोबारा होती है जिस स्टेट पे उसको छोड़ा गया था। दोबारा से शुरू नहीं करते उसकी प्रोसेसिंग, जहां से खत्म हुई है उसी स्टेट से दोबारा प्रोसेसिंग रिज्यूम होगी। So for that we have to maintain both the states, and this way context switching works. And then we are having the other step, that is switching to user mode from monitor mode. हम यूजर मोड से मॉनिटर मोड में जाते हैं। एज वी नो यूजर प्रोसेस must be run in user mode, therefore mode must be changed from monitor mode to user mode. So जब भी कोई भी प्रोसेसिंग होगी वो यूजर मोड में ही शुरू होती है, then allocations, resource allocations goes to the monitor mode or operating system mode. So for that we have to first switch to the user mode to start the user processing. Then the third step that we have that the dispatcher performs is restart the execution of process. The execution of process should be restarted by jumping to the instruction that was supposed to be executed when this process was lost in instructed or at the first instruction of this ready. So जब भी कोई भी प्रोसेस जो है उससे सीपीयू लिया जाता है, दोबारा उसी स्टेटमेंट पे उसी इंस्ट्रक्शन सेट पे सीपीयू को लेके जाना, वहीं से ही एग्जीक्यूट करना, दैट विल बी done under this particular step. So we will be restarting and resuming the execution of process from that particular state or situation. So this is all about dispatcher. So it basically performs for with three basic steps. Then afterwards we are having certain scheduling criteria. So let's discuss them. There are certain scheduling criteria. जब भी हमें scheduling algorithm बनाना है तो क्या चीजें ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। जब भी शेड्यूलिंग करवानी है क्या मैकेनिज्म से शेड्यूलिंग करवानी चाहिए जिससे हमारा जो शेड्यूलर है वो बहुत एफिशिएंट हो और हमारे ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो। तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन इज सीपीयू यूटिलाइजेशन। व्हाट कम्स विद सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन में हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा सीपीयू हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बिजी स्टेट में रहे, कभी भी फ्री ना बैठे, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी, तभी तो हमारे थ्रूपुट्स जो है हाई होंगे। तो CPU utilization should be there and CPU should remain as busy as possible. The other thing that comes under criteria is throughput. So what actually throughput is? Throughput क्या होती है कि आप एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रोसेस कर रहे हो, दैट कम्स फॉर थ्रूपुट. So throughput is basically defined as the number of processes that are completed per unit time, and it should be as high as possible. So it is usually dependent on the job mix. हम जॉब मिक्स करते हैं, जैसे कुछ जॉब्स होती हैं सीपीयू बाउंड होती हैं, कुछ जॉब्स हैं जिनको इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कुछ को स्टोरेज रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। सो हम उन बैचेस का मिक्स करते हैं। अगर एक जॉब वन है वो सीपीयू बाउंडेड है, जॉब टू भी सीपीयू बाउंडेड है, जॉब थ्री इनपुट आउटपुट बाउंडेड है, तो हम मिक्स करेंगे उनको किस तरह से कि पहली जॉब सीपीयू बाउंड रहे,
उसके बाद हम इनपुट आउटपुट बाउंड वाली रिसोर्स करेंगे, देन उसके बाद हम क्यों करेंगे अगेन सीपीयू वाली, सो दैट जब तक थर्ड जॉब की टर्न आएगी तब तक हमारा सीपीयू फ्री हो चुका होगा और हमारे पैरेलली इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं और सीपीयू रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं। कोई भी रिसोर्स हमारा फ्री नहीं है। इस तरह से हम गारंटी कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे ओवरऑल सिस्टम की थ्रूपुट को। हम ज़्यादा प्रोसेसेस एक यूनिट टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। Then the other criteria that comes here is turnaround time. Turnaround time is what? It is defined as interval between the time of submission and completion of job. एक जॉब जो है वो लेट से आप स्विच कॉन्टेक्ट स्विचिंग सीपीयू की करवा रहे हो, हर एक सेकंड बाद सीपीयू दूसरे प्रोसेस के पास चला जाता है। सो एक प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ और शुरू होने के बाद नो मैटर कि आप डिलेज फेस कर रहे हो या कॉन्टैक्ट स्विचिंग फेस कर रहे हो, शुरू होने से खत्म होने तक का कितना टाइम लगा, दैट कम्स फॉर टर्न अराउंड टाइम। कि आपको एक जॉब जब आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो द टर्न अराउंड टाइम शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। टर्न अराउंड टाइम कम से कम होना चाहिए। आपने एक जॉब सबमिट की, इमीडिएटली रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आपकी जॉब कम से कम टाइम में खत्म हो गई है। सो देयर शुड बी नो मच डिलेज एंड कॉन्टैक्ट स्विचिंग, so the overall turnaround time should be less. The other criteria that comes here in account is waiting time. Waiting time is what? It is the sum of time intervals for which the process has to wait in the ready queue. Processes ready queue में पड़ी हुई हैं, वेट कर रही हैं कि उनको कब रिसोर्सेज मिले या सीपीयू मिले, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मिले। वो जो टाइम पीरियड है जिसमें वो सिर्फ वेट कर रहे हैं, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, वो टाइम पीरियड जो है वो कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा रिस्पॉन्सिव सिस्टम होना चाहिए, आपकी शेड्यूलिंग बहुत रिस्पॉन्सिव रेट पे होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट आपको डिलेज ना फेस करने पड़े। So the CPU scheduling algorithm should try to make this time as less as possible for a given process. Then afterwards we are having response time. Response time क्या होता है? So it is defined as the time interval between the job submission and the first response produced by the job. जब भी आपने एक जॉब सबमिट करवाई है, रेडी क्यू में सबमिट हुई है जॉब, तब से लेके वो वेट कर रही है और उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स कितनी देर में मिला, कितनी देर में शेड्यूलर ने उसको रिस्पॉन्ड किया विद एनी ऑफ द रिसोर्स और कमांड, ठीक है। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर रिस्पॉन्स टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम भी कम से कम होना चाहिए, जैसे ही जॉब सबमिट हुई इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि या तो उसको रिसोर्सेज दो या उसको आप होल्ड पे डालो, जो भी इमीडिएट रिस्पॉन्स पॉसिबल है दैट शुड बी प्रोवाइडेड। सो दीज आर सर्टन क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग करते टाइम हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। हम किस तरह से शेड्यूलिंग प्लान करते हैं, क्या एल्गोरिथम्स होते हैं, क्या प्रोग्राम्स हमारे जनरेट होते हैं। सो हमारे पास काफ़ी तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन वी आर हैविंग इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मीन्स व्हाट, कि जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा रेडी क्यू में उसी को ही सबसे पहले सीपीयू प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिस मीन्स व्हाट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज। तो जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली it assumes that ready queue is managed as, if we are saying it is managed as first come first serve, and when the CPU is free it is
allocated to the process which is occupying the front of the queue. जो सबसे पहले है प्रोसेस उसको सीपीयू मिल जाएगा. Once this process goes into running state, its PCB is removed from the queue and this algorithm is non-preemptive. ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम होता है एंड इट इज द सिंपलेस्ट वन. नॉन प्रिमिटिव मीन्स जिस टास्क को आपने सीपीयू दे दिया आप उससे वापस नहीं लोगे जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है. ठीक है. सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज नॉन प्रिमिटिव वन. सो लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल फॉर दैट. एक एग्जांपल देख लेते हैं कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो किस तरह से काम करता है. So here is one example for that. इसमें आपके पास कुछ ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है इस टेबल में कुछ प्रोसेसेस है आपके पास. लेट्स से P1, P2, P3 एंड P4. वी आर हैविंग 4 प्रोसेसेस और ये हमारे रेडी क्यू में है. अब इन प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम जो है वो वेरी कर रहा है. बर्स्ट टाइम क्या होता है, उसको कितना एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम एक पर्टिकुलर प्रोसेस को चाहिए है. सो दैट कम्स फॉर बर्स्ट टाइम. सो हेयर P1 जो है P1 को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 21 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए. P2 को 3, P3 को 6 एंड P4 को 2. सो हम एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो निकाल लेंगे. एवरेज वेटिंग टाइम किस तरह निकलेगा, सम ऑफ ऑल द बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस. So simply what we'll do is we'll do 0 plus 21 plus 24 plus 30. So divided by 4. So the average waiting time will be what? 18.75 milliseconds. ठीक है. सो आपको ये एवरेज वेटिंग टाइम पता चला. अब देखिए क्या है, हम ये जाइंट चार्ट से मैं समझाती हूँ आपको. जाइंट चार्ट जो आप देख रहे हैं नीचे इससे आप समझिए. P1 जो है सबसे पहले सबमिट हुआ था. P1 को वेट नहीं करना पड़ा. जैसे ही वो 0 सेकंड पे सबमिट हुआ उसको साथ के साथ सीपीयू मिल गया और उसको एग्जीक्यूट कंप्लीट करने के लिए 21 यूनिट्स चाहिए. तो मीन्स 21 यूनिट तक सीपीयू इसके पास रहेगा. उसके बाद P2 जो है वो उसको सीपीयू मिलेगा आफ्टर 21 यूनिट ऑफ टाइम. मीन्स उतने टाइम तक वो वेट करेगा प्लस उसको 3 यूनिट टाइम अपना भी चाहिए प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. सो सिमिलरली P3 को 24 यूनिट टाइम तक वेट करना है प्लस उसको 6 यूनिट टाइम अपने चाहिए प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए. And similarly is with P3. So this is how we have formulated average waiting time. P1 को 0 टाइम के लिए वेट करना पड़ा, P2 को 21 के लिए, P3 को 24 के लिए एंड P4 को 30 के लिए. And then we are getting the average of 18.75 milliseconds. बच्चे इतना क्लियर है? Just revert me and so that we can proceed. Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. सो इसी तरह से ही अगर हमें एवरेज वेटिंग टाइम मिल गया है, हमें वेटिंग टाइम ढूंढना है सिर्फ P1 का. P1 का वेटिंग टाइम क्या होगा, P1 सबसे पहले सबमिट हुआ है उसको वेट ही नहीं करना पड़ा. तो P1 का वेटिंग टाइम क्या है, 0 सेकेंड्स. ठीक है. देन P2 का वेटिंग टाइम क्या है, 21. फाइन. P3 का है
24 24 कैसे है P3 का, क्योंकि 21 तो एग्जीक्यूशन टाइम हो गया P1 का प्लस एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ P2, इन दोनों को एग्जीक्यूशन टाइम जो है दैट मीन्स दैट इज द वेटिंग टाइम ऑफ P3, सो इसको 24 मिलीसेकेंड तक वेट करना पड़ा। तो इसी तरह से हम और भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल क्लियर है बच्चे? यस मैम। किसी को भी डाउट है अभी पूछ लीजिए। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम वी आर हैविंग इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। बाकी जो हैं वो इससे थोड़े कॉम्प्लेक्स ही होंगे। तो अगर यहाँ पे किसी भी तरह का डाउट है, कोई टर्मिनोलॉजी में डाउट है, आप यहीं पे क्लियर कर सकते हैं। All right, so we are having certain advantages and disadvantages of in first come first serve scheduling algorithm. Firstly, we'll discuss advantages. It is quite simple to understand and it is suitable for बैच सिस्टम। बैच सिस्टम के लिए हम इनको यूज करते हैं जिनमें ग्रुपिंग की होती है प्रोसेसेस की, कि कैटेगराइज किया होता है, बैचेस बनाए होते हैं कि ये सीपीयू डिपेंडेंट है या आईओ डिपेंडेंट है टास्क। तो इस तरह से हम बैचेस बनाते हैं, उन सिस्टम के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है। Then we are having certain disadvantages as well. Disadvantages क्या हैं? The waiting time here can be longer. जैसे अभी एग्जाम्पल में भी हमने देखा है, ये जो आपने एग्जाम्पल देखी थी इसमें आप चेक कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जो P4 है, P4 को सबसे कम टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, पर सबसे ज्यादा वेट P4 को करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम चाहिए P1 को और वो सबसे आगे लगी हुई है, तो इस टास्क की वजह से बाकियों को भी उतनी ज्यादा देर वेट करना पड़ रहा है। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, and moreover it is not suitable for time sharing systems. And in this particular scheduling algorithm there should be a proper mix of jobs. अगर सीपीयू वाली सीपीयू डिपेंडेंट जॉब है तो नेक्स्ट जॉब इनपुट डिपेंडेंट होनी चाहिए, देन उसके बाद सीपीयू। तो इस तरह से हम मिक्स कर सकते हैं जॉब, तभी हम प्रॉपरली रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इट ऑल वुड बी डिजास्टरली डिलेड। So this is all about input output first come first serve scheduling algorithm. And next we are having shortest job first scheduling algorithm, and that will be discussing in our next session. So I hope I have cleared at my part. This is all for today's discussion, and if anyone is having any kind of doubt may ask the questions.